Hi everyone. Okay, one second. What is happening? Hi everyone. Very good evening. Good evening, everyone. Okay, we'll get started. We are finally live. Okay, we were trying to get go live from a very long time. Now Nida is here, so we can finally go live. Hi Nida. A very good evening. We'll invite Zaveria also. Then we'll get started. Yes, ma'am. Sure. Perfect. Till then, hi. Okay. Hi everyone. What's happening? Yeah. Hi Mudassir. We are good. How are you? Okay. So guys, we are on Fridays, Sunday live with Psyche today. So we could not connect with Nida in the evening, so we are connecting now. Nida is a clinical psychologist from Pakistan, and she has done the very first batch of professional diploma in psychotherapies with us. So, and she's currently practicing in Pakistan. I think she'll introduce herself as well. And Javeri is joining us too. Nida, would you like to introduce yourself? Yes, ma'am. Sure. Well, my name is Nida Tehreem. I'm working as a clinical psychologist and a rehab psychotherapist in Pakistan. It's been more than 8 years I'm working as a psychologist. And yes, this is how I am. Awesome, perfect. So Nida, tell us more about what kind of work have you been doing? So where were you before joining PDP? Okay. Well, before joining PTP course, I was working as a clinical psychologist and mainly dealing in common mental health disorders. And also, the major area which I'm dealing was substance related disorders. So, before doing PTP, I was more into जैसे I was हमेशा से ना looking for a course जिसमें eclectic approach हो. Basically ऐसा कुछ जिसमें मैं different approaches या techniques को administer कर सकूं या apply कर सकूं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान कोई प्रॉपर ऐसी थेरेपी या कोई ऐसी टेक्निक या कोर्सेज नहीं थे और हमारी डिग्री लेवल तक थ्योरेटिकली तो वी आर वेरी मच ग्रोन. हमारी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होती है लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नॉट गुड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम कुछ सीख सके. सो आई वॉज लुकिंग इन टू दिस. उस पर क्या हुआ है कि जब मैं पेशेंट के साथ डील करती थी क्योंकि उन्हें तो साइकेट्रिक मेडिसिन मिल रही होती है उनको केमिकली बैलेंस करते हैं देन यू कैन डील विद द कैथारसिस एंड द नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसीजर्स. लेकिन प्रॉपर कोई साइकोथेरेपी नहीं थी कि मैं खुद को कहला सकूं दैट आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट. और थोड़ी बहुत टेक्निक्स थोड़ी बहुत इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस देख ली लेकिन कोई मजे की टेक्निक्स नहीं मिल रही थी कि मुझे लगे कि मेरी कोई स्किल्स पॉलिश हुई है या मैं खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेके जाऊं कि यस आई कैन डील विद दिस पेशेंट. और जब भी कोई पेशेंट आता था आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि हाउ टू गो अबाउट दैट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, क्या करना है कैसे करना है. देन randomly I was scrolling Instagram and I found Psyche. वहां पे you offered 5 days mini course और मैंने कहा चलो let's try with this. इतने courses लिए free and this is a free course तो let's try this. When I was into this free mini course, I remember कि 1 hour का वो free course था and the first therapy was positive psychotherapy which was very new to me. I never heard about positive psychotherapy. दो कि पाकिस्तान में कहीं भी all over the world साइकोलॉजी में होता है पॉजिटिव बी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी को लेके चलना है. लेकिन आई नेवर हेयर्ड अबाउट पॉजिटिव साइकोथेरेपी कि दिस इज अ टेक्निक इन इटसेल्फ. सो दैट वाज न्यू टू मी. अब जब मैंने वो 1 hour की क्लास ली all the techniques you were teaching and you were delivering that was literally new. और वो इतनी amazing थी कि I love the way you were engaging all the audience कि ये टेक्निक कर लो अपना रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके आओ उसको एडमिनिस्टर करो. दैट वाज अमेजिंग. तो जब मैंने वो सारा सीखा 1 hour की क्लास में और वो 5 days का कोर्स पूरा लिया तो मैं हॉस्पिटल में बैठ के सारे स्टूडेंट्स और अपने क्लिक्स के साथ सही सही जोश में लगे हुए हूँ. दिस इज एन अमेजिंग कोर्स. इन्होंने पीटीपी ऑफर करना है वी शुड गो विद दैट. पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोर्स नहीं है कोई थेरेपी नहीं है. 4 लाख की 5 लाख की कोई एनएलपी करा रहे हैं सीबीटी के अलावा मैंने कभी कोई नाम नहीं सुना. वी आर डूइंग नथिंग. As Uriya told you, I was very much into कि मुझे बस PDP करना है. And ma'am, believe me, this was the very first course जिस पे पता नहीं क्यों I was very sure कि I should take this one. मुझे इसको मिस नहीं करना किसी भी तरह. हालांकि मैंने ये भी नहीं सोचा दिस इज लाइक ऑनलाइन मीडियम इस पे ट्रस्ट कैसे करूं. अगेन इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश. तो मुझे लगा मैं फी कैसे सबमिट कराऊंगी मैं कैसे करूंगी. लेकिन मुझे बस ये था कि मुझे करना है. फिर मैंने घर पे शोर मचा दिया कि मुझे बस करना है. आई रिमेम्बर एक दिन रह गया था फी सबमिशन में और फिर कैसे मैंने अपनी आंटी से बात कर वो जल्दी में लिया कोर्स एंड लकीली आई डिड दैट. और उस कोर्स में आने के साथ साथ
लाइक जो पहली थेरेपी थी, पहला दिन था, आई वॉज नॉट दिस मच कॉन्फिडेंस कि मैं ऑडियंस के साथ इस तरह से बात करूं या कम्युनिकेट करूं. द ब्रेकआउट रूम्स या जूम का ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए ये सब बड़ी नई चीजें थी. मुझे ऐसे ही लगता था कि जूम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, स्काइप और एनीथिंग, दीज आर द थिंग्स कि बस आप लाइव आते हो, क्लास डिलीवर होती है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस कि ये इतना इंटरेक्टिव हो सकता है, या किसी लाइव सेशन या लाइव क्लासेस के अलावा ऑनलाइन मीडियम पे आप इतना लर्न कर सकते हो, या कोई टीचर में इतना एक स्किल होता है कि वो आपको इन्वॉल्व कर सकती है, एंड यू लिटरली इन्वॉल्व ऑल ऑफ द पीपल. फिर वन बाय वन, डे बाय डे मुझ में जब चेंजेस आए, और स्पेशली वो चेंजेस ना मैंने खुद में ऑब्जर्व किए, द अदर पीपल अराउंड मी दे वर आल्सो ऑब्जर्विंग द चेंज इनसाइड मी. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नाउ पॉलिश्ड वन, यू आर ग्रूम. तुम्हारी बात से लगता है दैट यू आर इनटू समथिंग जो डिफरेंट है, जो पहले जैसा नहीं था. फिर वो डे बाय डे चीज बढ़ती रही, और ऑब्वियसली आपको इस तरह की मोटिवेशन जब तक नहीं मिलती, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो आपकी वो जो इंटरनल मोटिवेशन है, दैट इज नथिंग. आपको दोनों चीजें चाहिए होती है, आपको अप्रूवल भी चाहिए होता है. तो वो साथ साथ ड्यूरिंग द थेरेपी में अपने पेशेंट्स पे एडमिनिस्टर करें जो रिहैब में थे या कोई ऑनलाइन क्लाइंट थे, उस टाइम पे आई वाज नॉट वेरी मच ग्रोन. आई वाज लाइक स्टार्ट में कि हाउ टू गो अबाउट द सेशन बाय सेशन, या कैसे लेके चलना है चीजों को. बट लेटर ऑन माय फेवरेट थेरेपी वाज पॉजिटिव साइकोथेरेपी एंड द काउंसलिंग वन. काउंसलिंग के बारे में मैम लिटरली इट वाज वेरी न्यू टू मी अगेन, कि काउंसलिंग में सेशन बाय सेशन क्या करना है. देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा डिफरेंट थे. लाइक एक एजेंडा बनाओ. अब इनिशियली बिफोर पीडीपी कोर्स जब भी 45 मिनट्स का सेशन होता था, मुझे नहीं पता सेशन का टाइम कब गया है, और मुझे खुद को ये सेल्फ असेसमेंट हो रही होती थी कि नहीं, आई वॉज नॉट गुड, ये वाली पेमेंट के लिए मैं वर्थ नहीं रखती हूँ, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया क्लाइंट के साथ. और ऑब्वियसली क्लाइंट के रिव्यूज भी वैसे थे, आपको खुद समझ होती है कि आपने कहाँ अच्छा किया है, कहाँ नहीं किया. बट लेटर ऑन थ्रू दैट काउंसलिंग स्किल के एजेंडा बनाना है. देन पेशेंट से, आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट आपने बताई थी कि डे वन पेशेंट से ऐसे पूछो कि स्टार्ट विद द थिंग जहाँ पे चीजें सब ठीक थी, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट. तो उस पर मुझे फर्स्ट डे फीडबैक जो मिला अपने क्लाइंट का, आई रिमेम्बर शी वाज लाइक कि थ्रू योर दिस स्टेटमेंट आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड वेरी कॉन्शियस कि कैसे होता है सेशन, साइकोलॉजिस्ट कैसे बैठा होगा, टेबल चेयर होगा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होंगी, मैं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करूंगी. दो आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि मैं जा रही हूँ साइकोलॉजिस्ट की और मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल आई वॉज कंफ्यूज. लेकिन विद योर दिस स्टेटमेंट आई वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड ईज टू शेयर अबाउट माई प्रॉब्लम, कि यस चीजें प्रॉब्लम से शुरू नहीं की जाती, अच्छा टाइम भी याद कर सकते हो आप. तो वो वन बाय वन जब मैं वो एक एक टेक्निक और एक एक स्ट्रैटेजी और जो भी मैंने सीखा था ड्यूरिंग द क्लासेस वो अप्लाई करती थी, तो मुझे फीडबैक मिलने लगा क्लाइंट का. बट देयर वर सो मेनी टेक्निक्स, ऐसा नहीं था कि कोई एक सिंगल थेरेपी थी. देयर आर फ्यू पीपल हु आर गुड विद साइकोथेरेपी, देयर आर फ्यू हु आर वेरी गुड विद कॉग्निटिव सीबीटी थेरेपी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेंटल फिल्टर होता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, मेंटल जिमिंग होती है. तो उस पर देयर आर फ्यू पीपल जो चाहते हैं कि बस साइकोलॉजिस्ट की साइड से ज्यादा एफर्ट्स हो, मुझे ना करनी पड़े. और इवन बिफोर पीडीपी आई रिमेम्बर फर्स्ट डे आपने बोला कि मैम अभी, एम आई ऑडिबल? दोबारा ट्राई करो. हाँ, now you are. Okay. I remember before during the first class you were like कि क्लाइंट को कभी भी डायरेक्शन नहीं देते हैं. तो आई वाज थिंकिंग बाय माई सेल्फ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लाइंट अगर हमारे पास आए तो डायरेक्शन तो देनी होगी, उसको कुछ सजेस्ट तो करना होगा. दैट इज एक्चुअली काउंसलिंग ऑब्वियसली. तो मैंने आपको बोला नहीं, बट आई वाज लाइक चलो लेट्स सी. So later on through these techniques, I was like, these are the techniques जो इतनी structured, इतनी organized थी कि उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन को आंसर नहीं करते, वो आपके अंदर से इतना डिग आउट करती हैं उन चीजों को कि आप खुद सोल्यूशन की तरफ जाते हो. आपको समझ आती है कि मैं जिन चीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा हूँ, चीजें उतनी वर्स्ट नहीं है. देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके बारे में अगर मैं अपना खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करूँ या उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, इनवेस्टिंग करूँ, या जैसे देयर वर फ्यू टेक्निक्स वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली, और द थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल, द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, देखा जाए तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. बट बिफोर पीडीपी लिटरली आई वाज नॉट वेल अवेयर कि इन चीजों को आप लाइफ में एडमिनिस्टर भी कर सकते हो. और ड्यूरिंग द क्लासेस आप जैसे कहती थी ना कि ब्रिंग some the real problem or the real stressor, I was मतलब
going through with a lot of stressor at that time when I was doing the course. You remember that मेरी parents की illness थी, मेरे खुद के कुछ personal issues थे, तो मैं हमेशा क्लास में अपने रियल स्ट्रेसर्स के साथ ही आती थी. एंड आई रिमेम्बर मैं अभी भी अपने होमवर्क देती हूँ मैम के उसमें इतना ज्यादा चेंज आया कि विद इन दोज 3 months आई वॉज नॉट इन टू जस्ट अ कोर्स, आई वॉज ग्रूमिंग माई सेल्फ, आई वॉज डीलिंग विद माई सेल्फ. इवन आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं कोई अपनी काउंसलिंग सेशन ले रही हूँ जिसपे डेली बेसिस पे मुझ में एक चेंज आ रहा है. सो दैट वॉज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी. और उसके बाद मैंने जितना स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने कॉलेज में पढ़ाया, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं सुपरवाइज करती हूँ ड्यूरिंग इंटर्नशिप प्रोसीजर और ऑनलाइन भी. और आई एम इनटू दिस थिंग कि बस हर टाइम किसी को रिप्लाई करना है, हेल्प करना है और मैम लिटरली मैंने दिल से, इट्स नॉट समथिंग कि मुझे कोई पेड प्रमोशन थी या इस कोर्स ने मुझे कुछ देना था, नो, इट वाज लिटरली अ जेन्युइन रिस्पॉन्स कि कोई और सीखे. हुरिया के पीछे भी मैं ऐसी ही पड़ी थी, हुरिया डू दिस, हुरिया हमारी डिग्रीज वेस्ट हो गई हैं, मैं कोई एमफिल नहीं कर रही, आई एम नॉट गोइंग इनटू पीएचडी, सब वेस्ट है, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, वी आर नथिंग लिटरली. अगर प्रैक्टिकली एक्सपोजर चाहती हो, बोलना है, खुद में चेंजेस लाने या पेशेंट के साथ वर्दी रहना है या अपनी कोई अपने स्किल्स को पॉलिश करना है या कोई क्लिनिकल सेटअप अपना खुद का बनाना है, तो वी शुड गो विद दिस एंड लिटरली इट ब्रिंग चेंज इन मी. आई एम सो हैप्पी आफ्टर डूइंग PDP. आई एम सो मच एक्साइटेड. Nida, thank you so much. It's so sweet to hear from you. And Nida, थोड़ा अपने clients के बारे में भी बताओ कि अब आप उनके साथ work कर रहे हो, तो किस तरीके के clients आपके पास आते हैं और वो क्या change देखते हैं अपने अंदर after taking therapy from you? ओके मैम, मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ऑब्वियसली जो रिहैब में एडमिट है, दीज आर सिवियर पेशेंट्स जो कि बाइपोलर के होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस के साथ और जो ड्रग एडिक्शन के साइकोसिस के साथ होते हैं. तो ऑब्वियसली वंस उनका केमिकल बैलेंस होता है फिर आप उस पर टेक्निक्स करते हो. आई रिमेम्बर देयर वाज अ क्लाइंट जो कैनबिस इंड्यूस के साथ आया था. वो जब केमिकली बैलेंस हुआ तो उसके कुछ डिसीजन मेकिंग में और रिलैप्स होता था बार बार, तो उस पर काम करना था. तो मैंने उस पर एमईटी एडमिनिस्टर की. अब एमईटी मैंने बड़े अच्छे से उस टाइम पे की थी. एक्चुअली जवेरिया इज कॉलिंग. ओके, तो उस टाइम पे मैंने एमईटी उस पे इनवाइट कर सकते हो यहाँ पे. आई गेस मैं उसको कर दी बाद में. आप सर्च करके इनवाइट कर लो. जवेरिया टॉक टू ट्रीट उसके पेज का नाम है ना. यस मैम, लेकिन मुझसे यहाँ से नहीं हो पा रहा, उसका मुझे शो नहीं हो रही. मैम उसका आपको इजी होगा आई गेस, और मे बी मेरी लाइव अगर कुछ देर के बाद बंद हो सो दैट यू कैन इनवाइट हर, क्योंकि यहाँ से कोई ऑप्शन. जस्ट अ मिनट मैम. I'm unable to invite her. There is no any option. I guess there is an issue in my Instagram. शाम से you were waiting और ये कुछ issues आ रहे थे. Breaking. The voice is breaking. I don't know what happened to my Instagram. कोई बात नहीं, अब ट्राई करो. Am I audible now? Yes, you're audible. Ma'am, I guess there is an internet connection. मुझे जवेरिया शो नहीं हो रही है मेरे अकाउंट पे. I guess इसलिए वॉइस ब्रेक होती है. You can invite her after like जो मेरा सेशन हो जाए उसके बाद you can invite her. क्योंकि I don't think so no कि इस तरह से वो मेरे साथ. ठीक है, तो आप ट्राई करें. Is Nida audible for others? Am I audible? Not for me. Maybe is it for me or is it for everyone? Guys, can we hear Nida? Nida की आवाज आ रही है? Am I audible to everybody? Yes. Now you are correct. अब Nida continue करो. अपने clients के बारे में बता रहे थे आप. Okay, so you were asking about the techniques अगर मैंने administer की थी, clients कौन से आते थे. तो वो there was a patient cannabis induced के साथ, once उसका chemical balance हुआ तो I go with them with the MET.
जो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, दैट वाज मेनली विद ड्रग एडिक्शन आई रिमेंबर। तो उस पर मैंने वो एडमिनिस्टर की, उसकी बहुत सी टेक्निक्स मैंने वन बाय वन निकाली। एंड अगेन रिहैब में रहते हुए इट्स मोर इजी टू गो विद द क्लाइंट, क्योंकि वो आपके पास एडमिट होते हैं, आप उनकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट हो चुकी होती है। तो आई अप्लाइड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टेक्निक। टेस्टिंग मैंने पूरी वो की, HTP, HFT, ऑल द आर्ट थेरेपीज एंड कलर वाली थेरेपी एंड ऑल। तो उसके साथ भी मैंने MAT की एंड दैट ब्रिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। लिटरली इट वाज लाइक कि मैं हमेशा से रिलैप्स होता था जिन रीजंस पे, इन वर्कशीट्स के थ्रू मैंने खुद से ये चेंज खुद में देखा है कि यस दिस इज द वे टू गो अबाउट, कि मैं क्यों रिलैप्स हो रहा था, मैं क्यों किन चीजों को सोच रहा था। मैंने ये सोचा पहले अपने लिए, खुद को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैंने दोस्तों से नहीं मिलना, मैंने उन सिचुएशन में नहीं जाना, बट थ्रू दोज इनर डिग आउट द क्वेश्चन उसके अंदर से, उनसे मुझे ये समझ आई कि नहीं, चीजों को एक्सट्रीम लेके जाके चीजें ठीक नहीं होती। वी शुड बी न्यूट्रल, हमें बायोरूसी एनवायरनमेंट में जीना है, हम लोगों को नहीं चेंज कर सकते। तो मैं हमेशा रिलैप्स क्यों होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मेरे लिए एनवायरनमेंट बाय का ऐसे सूटेबल बन जाए या लोग मेरे लेवल पे आ जाए। सो इट्स लाइक कि मुझे खुद में चेंज लाना है, मुझे अपनी मोटिवेशन तो चाहिए, मेरी आ ही नहीं रही है, और मैं लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे मोटिवेट करे। सो दैट थेरेपी वर्क्स। उसके बाद जो मेरे ऑनलाइन मेनली क्लाइंट्स आते हैं, जो इन पर्सन विजिटिंग आते हैं, उनमें मेनली मैंने OCD के साथ लिए हैं क्लाइंट्स, एंग्जाइटी के पेशेंट्स लिए हैं, और जो माइनर एंगर इश्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग है, या इवन आजकल रिलेशनशिप के बहुत इश्यूज हैं, तो उस पे पॉजिटिव साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड MBCT, इट रियली वर्कड आउट। इतनी अमेजिंग मैम इसकी टेक्निक्स थी कि मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी एक सिंगल टेक्निक छोड़ू। हालांकि बिफोर PDP आई रिमेम्बर मेरा कोई भी क्लाइंट 3 सेशन से ज्यादा मेरे पास नहीं आया, बिलीव मी। बट नाउ मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं कि इट्स बिन 3 और 4 मंथ्स के दे आर कॉन्टिन्यूसली विद मी, और वो हर, पहले उनका वीकली सेशन था, नाउ दे आर डीलिंग विद द सेशन मंथली, लेकिन वो गए नहीं है। दे वर लाइक हमें इन टच रहना है, हमें वो टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है, और वो ऑफिस सेटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे अभी तक पिक्चर्स भेजे होते हैं, मैंने अनसेंट पोस्ट कार्ड लिख दिया है, मैंने नॉन डोमिनेंट हैंड से वो ड्राइंग कर दिया, दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग दैट। और इवन देयर वाज अ क्लाइंट, she had done a lot with for her family, but as far as herself उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब वो खुद को इग्नोर करती थी और इस तरह की चीजें। तो when she came to me, तो उसकी सारी बातों में उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उसके सब लोग थे, शी वॉज नॉट देयर कहीं। तो उसको जब रियलाइज हुआ, उसको डिफरेंट टेक्निक के थ्रू और सारी चीजों के थ्रू, स्पेशली जो वो ट्रांजेक्शन एनालिसिस में ड्राइवर्स थे और स्ट्रोक्स थे, तो वो ड्राइवर वाला उसे मैंने टीच किया, बकायदा मैंने उसे सिखाया वो चीज के व्हाट आर ड्राइवर्स। तो उस पे शी केम विद एन आइडिया कि आई एम अ प्लीज्ड वन, और इस प्लीजिंग इफेक्ट की वजह से आई ऑलवेज सफर्ड अ लॉट, कि ये मेरा बिहेवियर था जिसकी वजह से मैं हमेशा फैमिली को, फ्रेंड्स को, हर कोई मुझे यूज कर रहा है और मैं इन चीजों पे चल रही थी, लेकिन लेकिन मैं खुद को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। सो थ्रू दीज थेरेपीज आई एम नॉट एबल टू डील विद माई सेल्फ। और am I audible now? I can't hear you. Is it only for me? Okay, I think it's my network then. Then my network is also fine. We can hear you. People are saying you're audible. हाँ, so निदा continue करो. I think it's my network. आपकी आवाज सबको तो आ रही है. And I was thinking it was my network. Well, these were the things. उसके बाद मतलब I remember कि I was the first batch student. So it's been 6 months now. मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किया था ये डिप्लोमा, तो अभी तो काफी टाइम हो गया इस चीज को. आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग विद द पीपल, और it brings really an enhancing and a positive effects on me and my clients. Even मैम आप देखा होगा मैंने अपने पेज पे कुछ क्लाइंट्स के फीडबैक पोस्ट भी किए, एंड कुछ इतने पर्सनल क्लाइंट्स आर वेरी मच कंसर्न कि मुझे पोस्ट ना करो, इस तरह की चीजें. आई हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक्स जो मुझे डे बाय डे पेशेंट्स ने सेंड किए हैं कि थ्रू दिस थिंग ऐसा हुआ, थ्रू दिस थिंग ऐसा हुआ, मैंने अपने भाई पे ये चीज की, मैंने इस सिचुएशन में ये की. आई रिमेम्बर
a day before yesterday, there was a client who was gone into dinner with his family. तो वहां पे उसके कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भाई के साथ कुछ झगड़ा हो गया, और वो रेस्टोरेंट में बैठ के मुझे मैसेज कर रहा है कि मैम वो जो आपने मुझे इस तरह की टेक्निक बताई थी उस पर मैं ये कर रहा हूँ, मैं अभी खुद को कर रहा हूँ, और फिर आई वाज डीलिंग विद हिम, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एंड आई वाज मोर इनटू अच्छा अब मुझे बताएं कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। तो फिर वही आपकी बात माइंड में कि नहीं, क्लाइंट को डायरेक्शन नहीं देनी, उसको बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। देन ही वाज लाइक मुझे लगता है मैं ये कर लूं तो ये ठीक रहेगा, ये कर लूं तो ये ठीक रहेगा। सो नाउ आई केम अप विद एन आइडिया कि क्लाइंट्स में खुद में एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज होती हैं, एंड थ्रू दीज टेक्निक्स दे आर हैविंग इनसाइट नाउ कि मुझ में ये सारी चीजें हैं। मैं अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि साइकोलॉजिस्ट मेरी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताएगा या मेरे लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ले आएगा कि मेरे लिए ये चीजें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी। दिस इज नॉट द वे। मुझे खुद ही खुद को डील करना और मेरे अंदर वो एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज मौजूद है। सो इन ऑल माई फीडबैक्स रिगार्डिंग पॉजिटिव साइकोथेरेपी, रिगार्डिंग MBCT एंड ऑल अदर साइकोथेरेपीज, देयर वाज द मेन पॉइंट कि उन लोगों में ये इनसाइट डेवलप हुई है थ्रू दीज टेक्निक्स कि वी आर केपेबल फॉर डीलिंग विद द स्ट्रेसर्स जो हमारे साथ हैं। एंड देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनमें ये चीज उनमें इंड्यूस हुई है थ्रू और सेल्फ असेसमेंट हुई है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर आवरसेल्व्स लिटरली। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें थेरेपी में जाना या काउंसलिंग या इस तरह की टेक्निक्स अगर हम डेली बेसिस पे अप्लाई करें तो लेटर ऑन जो फ्यूचर पे आने वाले स्ट्रेसर्स हैं हम उनसे बिफोर कमिंग द स्ट्रेसर्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको टेक्निक्स को, और हम उनको यूज करके एक अच्छा सा चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सो दे आर ब्रिंगिंग द चेंज इनसाइड देम। अमेजिंग निदा, मतलब इतने सारे चेंजेस एंड सो मेनी क्लाइंट्स यू आर सीइंग, एंड इतना अच्छा चेंज वो सब अपने आप में देख रहे हैं, तो इट्स रियली ब्रिलियंट। तो निदा, आपने बताया कि आपने खुद पे भी वर्क करा ड्यूरिंग द प्रोग्राम, अपने पर्सनल कंसर्न्स के ऊपर भी, एंड नाउ यू आर ऑल्सो मेंशनिंग कि प्रोफेशनली आपके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंस देख रहे हैं अपने आप में। तो Nida, what would you like to say to people who are probably still on the fence कि PDP ज्वाइन करें या ना करें, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसके लिए नहीं होगा, तो आप कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? PDP is for every other person. Even ये मुझे जरूर बताना है कि during the PDP classes दिस वर इवन न्यू फॉर मी कि इसमें सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं थे, सोशल साइंसेस के थे, IT के स्टूडेंट्स थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे, इकोनॉमिक्स के थे, वगैरह वगैरह, साइकेट्रिस्ट थे, मेडिकल ऑफिसर्स थे। सो इवन दिस वाज न्यू फॉर मी। पाकिस्तान में आई वाज लाइक कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, इवन नॉट इवन साइकेट्रिस्ट, उनका काम है मेडिसिन के साथ, उनका ये डिपार्टमेंट नहीं है। तो जिस साइकोलॉजिस्ट या कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ ये आ सकते हैं, बट नो, PDP के कोर्स में ड्यूरिंग द क्लासेस मैंने ये देखा कि दीज थेरेपीज आर नॉट मेयरली रिलेटेड टू साइकोलॉजी। दीज आर समथिंग जो आप किसी भी एरिया में, अपने ऑफिशियल सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल सेटअप में आप कहीं भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। यू कैन बी अ गुड काउंसलर, यू कैन बी अ थेरेपिस्ट। आप सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट क्लिनिकली नहीं कहलाओगे साइकोलॉजी पढ़ के, आप किसी भी डिपार्टमेंट में थेरेपिस्ट और प्रैक्टिशनर बन सकते हो। सो दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। फिर जैसे वो ग्राफोथेरेपी और वो वाली चीजें थी, देयर वर सो मेनी थेरेपीज जो मेनली क्लिनिकल बेस्ड थी ही नहीं, वो ऐसी थेरेपीज थी कि आप जस्ट एज ए काउंसलिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद में अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, आप खुद में देख सकते हो कि वेदर आई एम गुड विद काउंसलिंग और वेदर आई एम गुड विद पॉजिटिव। क्योंकि क्लिनिकल सेटअप में लाइक आफ्टर डिग्री मुझे लगा था कि जब क्लिनिकल सेटअप में आया तो बस अब यू आर इनटू दिस। नो, नाउ आई हैव फ्यू डोमेन्स कि मैं क्लिनिकल की साइकोलॉजी कर भी मैं पॉजिटिव साइकोथेरेपी बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी काउंसलर बन सकती हूँ, मैं CBT को लेकर चल सकती हूँ, मैं किसी भी डोमेन में जा सकती हूँ, क्योंकि हर पर्सन के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स है। सो एवरीबडी इज नॉट गुड और सूटेबल विद एवरी सिंगल थेरेपी। हर किसी की डोमेन अलग होती है। एंड इवन मैंने 12 थेरेपीज लर्न की है, सो आई एम नॉट गुड विद ऑल द 12 थेरेपीज। मुझे टेक्निक्स आती है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लेकिन कुछ ऐसी है जिनमें मेरी बहुत अच्छी कमांड है, टिप्स पे है, मुझे पता है कि सेशन बाय सेशन कैसे लेके जाना है, उन्हें फाइल अप कैसे करना है, अब जो काम किया इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, देन नेक्स्ट क्या है, और क्लाइंट के रियल स्ट्रेसेस को लेके अदर देन दैट मैं स्टूडेंट्स के साथ भी वो डील कर रही होती हूँ, मैं बाकी चीजों को भी लेके चल रही होती हूँ। सो दिस इज द थिंग, इट इज फॉर एवरी सिंगल फील्ड, it's not merely for psychology students.
और फिर दूसरी चीज के साइकेट्रिस्ट जो थे, जो दे आर साइकेट्रिस्ट, दे आर प्रैक्टिसिंग समवेयर, तो वो लोग इस फील्ड में आ रहे थे और वो इंटरेस्ट ले रहे थे। तो जैसे आई रिमेम्बर मेरी मेडिकल ऑफिसर है, शी इज मोर इनटू लर्निंग फेज, वो हमेशा शी इज वेरी कीन टू लर्न मोर एंड मोर। तो जब भी मैं ये थेरेपीज वहाँ पे नोट्स बनाती थी या होमवर्क कर रही होती थी, शी वाज लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी करना चाहिए। तो मैं उन्हें मोटिवेट कर रही होती थी कि आप लो इस कोर्स में, इसमें पार्टिसिपेट करो, आप में मजीद ग्रूमिंग है। क्योंकि जब आप साइकेट्रिस्ट होते हो, आप मेडिसिन दे रहे हो, आपको भी काउंसलिंग करनी पड़ती है और टेक्निक्स, तो आपकी खुद की स्किल्स बड़ी पॉलिश होती है। सो इट इज फॉर एवरीबडी, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी सबको कि डू दिस। क्योंकि मैम लिटरली इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, मैंने देखे। आई एम इवन डूइंग इंटरनेशनल कोर्सेज, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। आई हैव सो मेनी सर्टिफिकेशन, जितने सर्टिफिकेशन शायद मेरे पास है किसी के स्टूडेंट के पास नहीं है, लेकिन दैट इज मेरली अ पीस ऑफ पेपर। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मेरी लर्निंग बहुत है। वो बस ऐसा है कि मैं सर्टिफिकेट्स वॉल पे लगा दूं और मैं बता दूं दैट आई हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, बट दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट। और इसके पूरे 3 मंथ्स में मैंने सर्टिफिकेट का जिक्र भी नहीं सुना। इट वॉज मोर इन टू प्रैक्टिकल वर्क। इवन मैं कुछ दिन पहले भी किसी से बात कर रही थी, एक स्टूडेंट से, और मैंने ये बता रही थी कि मैम की फर्स्ट लाइन थी जो कोर्स के आउटलाइन में, कि देयर इज 20 or 30% थ्योरेटिकल एंड लेफ्ट जो है 80-70% प्रैक्टिकल। दैट वाज नॉट जस्ट अ लाइन, लिटरली यू डिड दैट। इट वाज मोर इनटू प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इतना इंटरेक्टिव, इतना प्रैक्टिकल। और जब तक आप खुद में चेंज नहीं देखते, ऑब्वियसली आप किसी और पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू एवरीबडी टू गो विद द पीडीपी कोर्स। निदा, आपने मेरे लिए कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है. यू कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. We have discussed your personal transformation, we have discussed your professional transformation, we've discussed the transformation of your clients, and also कि कैसे the course is practical in nature rather than theoretical. और also people are not from psychology background, या कुछ होते हैं जो distance से masters करते हैं and then they are like कि समझ आएगा या नहीं आएगा. So even that doubt you have clarified कि उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, तो it's understood. Perfect. और कुछ आप ऐड करना चाहते हो निदा आपके माइंड में? बिकॉज इन माई आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू, आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनी मोर क्वेश्चंस. मैम आई हैव लिटरली अ लॉट टू से। ऑब्वियसली टाइम कम है, बातें बहुत ज्यादा है। मैं पीटीपी के बारे में लिटरली बोलना चाहती हूँ, और मैं जब बातें करती हूँ, मेरे सामने जो भी पर्सन होता है, उसका पहला क्वेश्चन, वो तुम्हें देती क्या है? वो तुम्हें पे करती है, तुम उनकी पेड प्रमोशन हो? मैं आई एम नॉट अ पेड प्रमोटर, मैं कुछ भी ऐसी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं कि वो क्या है। मैंने लिटरली आपको इतना मशहूर कर दिया है पाकिस्तान में। माई स्टूडेंट्स और माई फैमिली वाज लाइक कि मैम वैशाली की आवाज घर में गूंजती थी ना, तो वी एंजॉयड। मेरी अम्मा किचन में खड़ी होकर थेरेपीज देख रही थी, अच्छा ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। तो दिस इज एन अमेजिंग लिटरली। और एक और चीज ग्राफोथेरेपी के बारे में बोलूंगी, दैट वाज लिटरली अ न्यू थिंग फॉर मी, दैट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट कि ग्राफोथेरेपी में जो आपकी राइटिंग होती है, राइटिंग कैन इवन हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। और आपकी वो वाली चीज के आपके सिग्नेचर्स में अगर आप देखते हो कि इफ देर इज एनी नेगेटिव ट्रेट्स और समथिंग, तो इफ यू आर चेंजिंग दैट सिग्नेचर, इफ यू ब्रिंग चेंज विद योर राइटिंग स्किल्स, तो आपकी पर्सनालिटी में आप देखोगे कि स्लोली और ग्रेजुअली चेंज आएगा। इवन आई डिड दैट। जब भी मैं होमवर्क देती थी अपने स्टूडेंट्स को, मैं ग्राफोथेरेपी के जो पॉइंट्स इनिशियली मुझे याद थे वो मैं कर रही होती थी, या मैं उन्हें जानबूझकर बोलती थी अपने क्लाइंट्स को कि नीचे सिग्नेचर करो होमवर्क के बाद। तो उसका एनालिसिस करके मैं बताती नहीं थी मैंने कहाँ से क्लिक हुआ मुझे, मैं बस वैसे ही सेशन में बोलती थी। एंड दे वर लाइक तुम्हें कैसे पता चला? दिस थिंग इज रियली इन मी। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ऐसी वाली चीजों के लिए आई एम गुड, और मेरे पेशेंट को मैं अच्छा सा असेस कर रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें बताया कि दिस इज द थिंग यू शुड चेंज इन योरसेल्फ, दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट। सो देयर इज अ लॉट टू से अबाउट एवरी सिंगल टेक्निक। हर चीज में इतनी इंसाइट है, इतनी इतनी डेवलपमेंट है, इतना स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। एंड लिटरली दिस इज अ बिग थिंग जो मैं भी कहने वाली हूँ कि आफ्टर दिस थेरेपी मुझे जवेरिया इज डूइंग सीबीटी, इवन हुरिया इज डूइंग एनएलपी एंड अदर डीपीटी, तो वो मुझे अक्सर बोल रहे हैं कि गो विद दिस, गो विद दिस। मैंने कहा आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी और की जरूरत है। आई एम गुड विद दिस डिप्लोमा, आई कैन डू वेल। और बहुत से ऐसी चीजें थी मैम जिनके लिए मैं इनिशिएटिव लेना चाहती थी, लेकिन आई वाज द वन जिसे हमेशा पुश करना पड़ता है। आई एम नॉट अ गुड मोटिवेटर फॉर माई सेल्फ, बट आफ्टर दिस कोर्स मैंने कोई भी चीज वो पेंडिंग नहीं छोड़ी। मैंने जो स्टार्ट करना था आई वाज लाइक बस स्टार्ट करो, बस इनिशिएटिव लो। सो इट लिटरली ट्रांसफॉर्म मी एज अ Nida. I'm so happy after doing this video. Wow, thank you so much, Nida.
थोड़ा आप और डिस्क्राइब करो अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी. तो the new मैम Nida that पर्सनल you were describing, how is she different from the old Nida? वेल द ओल्ड निदा वाज मोर इनटू के छोटी सी बात आनी है और वो टेंशन लेके बैठ जाना है. और अभी क्या होता है कि ऑल द टाइम मैं खुद के साथ एंगेज होती हूँ. मैं सबको लगता है कि आई एम यूजिंग मोबाइल ऑल द टाइम, बट लिटरली मैम मैं उसमें लिख रही होती हूँ. मैं उसमें क्या लिख रही होती हूँ, ऑल दोज टेक्निक्स. अगर मुझे जैसे रिसेंटली मेरे बॉस ने कुछ एक अजीब सी बात बोली, दैट वाज नॉट गुड फॉर मी और आई फील वेरी अपसेट अबाउट दैट. तो मैं अनसेंट पोस्ट कार्ड वाला अप्लाई कर रही हूँ खुद पे. इसी तरह देर वॉज अनदर थिंग कि मेरे भाई से कोई क्लैश हुआ है, मेरे कोई कजन से हुआ है, किसी फ्रेंड से आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दैट पर्सन और एंगेजिंग विद दैट लेवल ऑफ एंटेंगलमेंट और वो रिलेशनशिप खराब करना वो सारा, आई वॉज डीलिंग विद माई सेल्फ कि वेयर आई वॉज रॉन्ग. कहाँ मेरे में चेंज आ सकता है कि चीजें सेटल डाउन हो जाए या बेहतर हो जाए. एंड इवन आई एम मोर इनटू पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कि पहले चीजों की स्ट्रेस लेके बैठ जाना है और ऐसे लगता है कि बस ये पहाड़ टूट गया, ये मुसीबत आ गई, अब तो कुछ ठीक ही नहीं होगा. नाउ आई एम मोर इनटू कि नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है. पहले बार आई वाज लाइक कि नहीं, हर चीज का सोल्यूशन ही होता है, बहुत सी चीजों में आपको वैसे ही जीना पड़ता है. बट नहीं, देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी सिंगल प्रॉब्लम. आपको इतना ग्रूम्ड होना होता है, इतना पॉलिश या डिग आउट करना होता है अपने आप को न्यूट्रल होके, नॉट अ बायस्ड वन, कि आप कैसे उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. एंड आई लिटरली अप्लाइड ऑल द टेक्निक्स, ऑलमोस्ट ऑल द टेक्निक्स टू माई सेल्फ. और बड़ा न्यूट्रल मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया उसको, और बड़ा न्यूट्रली उसको मैंने इंटरप्रेट किया कि व्हाट आर द आंसर्स. सो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेरी पर्सनल लाइफ है, ऑब्वियसली यू नो अबाउट दैट समहाउ. तो उसमें मैंने लिटरली चेंज किया. नाउ आई एम वेरी हैप्पी. नाउ आई एम लिटरली लिविंग माई लाइफ. पहले आई वॉज नॉट एंजॉइंग द लाइफ, नाउ आई एम एंजॉइंग. क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आई बिकम वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी एनर्जेटिक. और आपसे तो मुझे वैसे ही बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है. आई वाज थिंकिंग और अब तो आई 4:30 थिंक से ये वो लिटरली बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. एंड आई थिंक निदा अब तो डिप्लोमा को करे हुए भी आपको 6 months हो गए हैं. तो इफ यू आर टेलिंग दिस आफ्टर 6 months, इसका मतलब है कि वो चेंजेस लास्ट भी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जितनी देर आपने किया सिर्फ तभी है. इवन आफ्टर दैट यू आर स्टिल सीइंग दोस चेंजेस बिकॉज यू आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग. So I would even like एग्जैक्टली to मैम. mention here कि guys, Nida used to watch my class even in her shopping mall. So her level of dedication was whole next level. So she did not ये miss सब even a single class in the sessions. So that was the आई स्टिल level of रिमेम्बर. determination and मुझे इतनी dedication. टेंशन हो रही थी कि मैंने एक क्लास में मिस नहीं करना, मेरा पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा. 3 months मैंने कोई कमिटमेंट नहीं रखी थी. एक दिन मेरी अम्मा वाज इन हॉस्पिटल एंड आई वाज लिटरली, डॉक्टर्स अम्मा को चेक कर रहे हैं, शी वाज इन अ सिवियर कंडीशन एंड आई वाज टेकिंग क्लास. दे वाज लाइक ये आपकी सगी माँ है. मैंने कहा हाँ, शी इज माय वन मदर, और मैं क्लास ले रही हूँ. और इसी तरह मेरी वो आंटी की शॉपिंग का मसला. तो आई वाज इन अ मॉल और वो मॉल वाले मुझे ऐसा, मैम ये ड्रेस दिखा दो. मैम इसका क्या साइज है, वेट, और मैं टेक्निक देख रही हूँ और मैं पूरा वो कर रही हूँ. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड इन द क्लासेस. एंड इट्स द ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट जितना भी इंथुजियास्टिक होता है, वी डिड सो मेनी कोर्सेज एंड वी पेड फॉर दोज कोर्सेज. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेमेंट दी है और आप कोर्सेज कर रहे हो तो इसलिए यू आर इनटू दोज क्लासेस. देयर आर सो मेनी पीपल जो डिग्री में भी इतने पैसे देते हैं लेकिन वो डिग्री को भी उस तरह से नहीं करते. और मैं अभी दूसरे कोर्सेज कर रही हूँ, कुछ पेड है कुछ अनपेड है. आई एम नॉट मोर इनटू दैट. और वही 6 months वाली बात मैंने अभी लास्ट वीक जो किया है, आई स्टिल डोंट रिमेम्बर द इवन द हेडिंग ऑफ दैट कोर्स लिटरली, लेकिन आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ दैट. बट दिस कोर्स इज लिटरली अमेजिंग. ये ऐसा है कि आपको याद रहता है, ये ऐसा है कि एक पॉजिटिव चेंज लाता है, आप वो चीजें करते हो क्योंकि इट्स मोर इजी टू एडमिनिस्टर, इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड वन, और बहुत बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाते हैं. सो दैट आप उसको एडमिनिस्टर करते हो. बाकी ऑल द कोर्सेज वर वेरी थ्योरेटिकली, इट वाज अ प्रैक्टिकल वन. How sweet, Nita. I even remember कई बार हमारी classes used to go for 2.5-3 hours, and there is always homework also attached to the class. So despite Nida आपका इतना busy schedule है, and I have some people coming to me, तो वो कहते हैं कि अभी नहीं बाद में, because बहुत busy schedule है. And I remember आप I think 2-3 things you are doing together. आप hospital भी जाते हो, शायद अपने private clients भी आपके, फिर आप कोर्स भी करते थे, फिर कोर्स का होमवर्क भी करते थे. तो कैसे आप ये सारी चीजें मैनेज करते थे?
मैम आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि हर चीज टाइम पे करनी है. आई एम नॉट द पर्सन जैसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला. मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए. इवन मैं जवेरिया को फोर्स करती हूँ, जवेरिया अभी होमवर्क करना है, निदा मैं 1 घंटे बाद, नहीं अभी करना है. तो मेरा वो हरी अप ड्राइवर वाला सीन था कि मैंने बस अभी काम करना है. इवन आई रिमेम्बर मैंने क्लास में आपको बताया था कि मैं घर पे अक्सर स्कूल लेवल पे झूठ बोलती थी कि टीचर ने मुझे कल की डेडलाइन दिया, हालांकि 1 वीक बाद होती थी डेडलाइन, कि अभी काम करना है. सो आई वॉज ऑलवेज इन टू हरी अप ड्राइवर कि बस अभी करना है. और फिर आपसे मुझे क्यों इंस्पिरेशन होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आप पूरा दिन एक मशीन की तरह बस चल रही है चल रही है चल रही है. तो मुझे और इंस्पिरेशन होती थी कि इफ शी कैन डू दिस तो व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती. तो वो जोश आता है. और जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो ना मैम, व्हेन यू एंजॉय योर प्रोफेशन, तो फिर ये चीजें करने को दिल करते हैं. सो ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं रिहैबिलिटेशन में हूँ, इतने सुबह साइकेट्रिक पेशेंट है तो मैं बोर हो रही हूँ. पीपल यूज टू से कि तुम खुद के लिए टाइम कब निकालती हो, जॉब और ऑफिस और घर, तुम तो बहुत बोरिंग हो. मैंने कहा तुम्हें नहीं पता. इफ यू एंजॉय योर प्रोफेशन, इफ यू आर एंजॉइंग वेल डीलिंग विद योर पेशेंट्स, तो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. फिर आप उस लम्हों को एंजॉय करते हो, वो आपका खुद का टाइम होता है. जरूरी नहीं कि आपको एक एक्स्ट्रा मीटिंग चाहिए. सो आई वॉज लाइक कि मुझे सीखना है. मैं अगर इसमें इतने शौक हैं, मुझे सीखना है, कुछ करना है. और ये जो इतना मैं बोल रही हूँ, ये मेरा होमवर्क और वो टाइम पे क्लासेस लेना और वो उस टाइम पे मोटिवेशन, दिस इज द रीजन why I'm saying all the things. Even I have a lot more to say. Time is short. So this is the thing. I was more into this course and other courses also, but this was literally a transformational one for me. थैंक यू सो मच निदा. इनफैक्ट आप इतनी रात को टाइम निकाल के हमारे से बात कर रहे हो, ये अपने आप में इट्स अ वेरी बिग डील. सो आई एम श्योर नॉट एवरी स्टूडेंट वुड डू दैट, but it really means a lot. Perfect. So, anything else that you want to add, Nida, before we invite Javeria also? No, ma'am, it's nothing. I guess I'm done with everything. I just want to say Perfect. thank you so much for every single thing. You were not just a mentor. You were not just a teacher or an instructor. I remember आपने कोई एक single message ऐसे unseen नहीं किया homework के लिए. You were not like into के सिर्फ classes के time पे homework या बाकी चीजें guide करनी है. मैंने रात 12 बजे मैसेज किया है, मैंने 2 बजे किया है, मैंने सुबह किया है. आई वाज लाइक ये सोती नहीं है या बस मैम जाग रही होती है, ये इनका मोबाइल ऑटो पायलट मोड पे लगा कि मैम सो रही है और मोबाइल पॉपअप हो रहा है और मैसेज का रिप्लाई. और आई स्टिल हैव दोस वॉइस नोट्स जिसमें आप एक्सप्लेन करती थी, अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ऐसे कर लो, अच्छा निदा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. सो मैम दैट इज अमेजिंग. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा टीचर नहीं देखा, ऐसा ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं देखा. इवन योर गाइडेंस रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स. इवन टुडे आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज वेरी अपसेट कि मैम इज वेटिंग 4:30 से और इट्स टू बैड, मैं लाइव नहीं जा पाई. यू वर लाइक जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है. सो दैट इज अमेजिंग. I literally have no words for you. You're amazing. Thank you so much for Thanks every to you single as thing. well. The level of dedication that you have shown inside the course is also exceptional. तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. Guys, Nida comes with 7 years of experience. 1 year of experience अब उसके बाद भी हो गया ना. When you joined, I think diploma, then you had 7 years something of experience. उसके बाद with the qualification that she comes with, which is MPhil and so on. So even after that, I think you're telling that the course helped you. And the things that you learned inside the program is not something that you learned inside your master's and MPhil. So would it also help people who have a lot of experience? Perfect. So all right, I think we should now call it a day. Should we interview Javeria? It's 11:10. So I'll speak to her. We'll see if we should continue now or we'll interview Javeria tomorrow or so. Thank you so much, guys. Thank you so much for listening to me and Nida. Thank you, Nida. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Have a good day. Good night.